Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In previous session we had talked about different types of operating system. We had already discussed arithmetic operator, logical operator and relational operator. In today's session we are going to discuss the expressions. Okay. So first we need to understand expression is what. Okay. What is expression in Java? There are different types of expressions. So first we need to understand what is the expression. So expression is just a combination of constant variables. It is a combination of constant variables, operators and method calls. कॉलिंग मेथड भी कह सकते हैं आप, मेथड कॉल्स. ठीक है. So expressions are what? It is a combination of constant like 5, 4, any kind of float value, 6.0, real number you can say, integer number. Variables is just like x, y. ठीक है. Operator is just like plus, minus, multiplication, into symbol, division. ठीक है. And method call is just like any method like add method. So expression is what? It is a combination of a constant, variables, operators and method call. Okay. And the most important thing about the expression is that an expression, whenever it is evaluated, it always return a single value. It always return a single value. It returns single value. Okay. So it is, this is what? This is a combination of constant, variable, operator and method calls. The value of an expression can be assigned to a variable or combined with other values to form a complex expression. Literals, variables and method calls are the simple expression, as you know very well. More complex expression can be formed using operators, which you have studied in this chapter. Okay, so several operators appears in an expression. If there are lots of operators in a single expression is there, then we will use precedence and associativity that we will discuss. Okay. So let's understand what are the different types of expression. That is the definition of the expression we had discussed. Now we are going to discuss different type of expression. Clear? In Java, as you know very well, I'm going to write it here. You can also note it down if you want. Okay. Otherwise this video is enough for you. Mathematical, wait a minute, we can also say that it is a arithmetic expression. Second thing, string expression. ठीक है. नेक्स्ट इज बुलियन. बुलियन को हम लोग समटाइम्स लॉजिकल भी बोल देते हैं. ठीक है. बुलियन एक्सप्रेशन और लॉजिकल एक्सप्रेशन. ठीक है. In mathematical expression, or you can say in arithmetic expression, there are different types actually. The first type is integer type actually. Integer means integer constant, integer constant, integer constant plus variables. ठीक है. This is the first. Second thing is what बेटा? रियल एक्सप्रेशन. रियल एक्सप्रेशन आप लोग को पता है बेटा, लाइक फ्लोट नंबर, डबल. ठीक है. फ्लोट डेटा टाइप नंबर्स, डबल डेटा टाइप्स नंबर्स. सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल कांस्टेंट. अभी मैं देखूंगा सारी चीजें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या एक्सप्लेन करना है. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. सो डोंट बी पैनिक कि सर ये है क्या. इंटीजर कांस्टेंट और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन है इंटीजर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और रियल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है. इसमें रियल कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है. ठीक है. स्ट्रिंग्स में वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ स्ट्रिंग्स.
there are lots of operations are there, concatenation operation we will see, ठीक है, just like expression we will see, and in boolean we will see different you know logical operators, ठीक है, you have already discussed, ठीक है, आपने लॉजिकल एंड पढ़ा था, लॉजिकल और पढ़ा था, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी वैल्यूज होंगे, जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे वो बूलियन एक्सप्रेशन में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में सबसे पहला है इंटीजर एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, इसलिए आप लोगों को पढ़ाना भी है, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो सारी तबीयत किनारे करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ बेटा आप लोग ज़रूर देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा बाद में, ठीक है। सो मैंने अभी बताया आपको इंटीजर एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इंटीजर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में आते हैं बेटा इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स। ये चैप्टर ये जो चैप्टर का टॉपिक है एक्चुअली एक्सप्रेशन, ये बहुत इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। इट्स जस्ट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ कि व्हाट इज एक्सप्रेशन, हर एक्सप्रेशंस को अलग अलग एक्सप्रेशंस जैसे आपने राइट किए हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर का कॉम्बिनेशन है, इंटीजर कांस्टेंट या वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से। तो मैंने सपोज दैट लिखा कि 23, 23 आपको पता है बेटा ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा है, ये इंटीजर वैल्यू होल नंबर है और ये आप एक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर, इंटीजर एक्सप्रेशन। मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन राइट कर दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ x इक्वल टू 5 + a। यहाँ पर 5 क्या है बेटा, यहाँ 5 है इंटीजर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे 5 4 3 एनी न्यूमेरिक वैल्यू जो कि फिक्स है। ए क्या है बेटा, दिस इज अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जो भी आप वेरिएबल की वैल्यू लेंगे ए इक्वल टू लेट करेंगे या यूजर से इनपुट लेंगे वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटीजर एक्सप्रेशन। एज आई टोल्ड यू, इंटीजर एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर कांस्टेंट प्लस वेरिएबल्स। Suppose that if you are writing like this, x into y plus z in a bracket, this is a bracket, this is also a part of integer expression, ठीक है। इसमें भी देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 वेरिएबल्स आर देयर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पे y इक्वल टू -x प्लस 4 × y मैंने राइट कर दिया सपोज दैट, ठीक है, ये 4 है बेटा, ये y है। इस टाइप का एक्सप्रेशन है जिसमें x की वैल्यू जो है -x है, उसको हम ऐड कर रहे हैं 4 × y से। तो इसमें क्या है बेटा, इंटीजर कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इट इज अ इंटीजर, इंटीजर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। इजी है, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ ये एक्सप्रेशन कहलाता क्या है, इंटीजर एक्सप्रेशन। बाकी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है, बस हम यूज़ करते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता इसको कहते क्या है। यूज़ तो हम करते हैं, हमें पता है कि हाँ ये मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, दिस इज अ एडिशन सिंबल, और इसको हम ब्रैकेट में एक्सक्यूट कर रहे हैं, ये पहले एक्सक्यूट होगा उसके बाद ये ऐड होगा इस नंबर से, यहाँ पे पहले ये एक्सक्यूट होगा फिर ये एक्सक्यूट होगा, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने से पहले, इसीलिए मैं ये एक्सप्रेशन चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ सो दैट जब मैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि एक्सप्रेशन क्या है और कैसे क्या एक्सक्यूट हो रहा है, कौन सा ऑपरेटर पहले एक्सक्यूट होगा, कौन सा पहले बाद में एक्सक्यूट होगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फ्लोट एक्सप्रेशन कह सकते हैं बेटा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्लोट की जगह बेस्ट रहेगा बेटा आप रियल एक्सप्रेशन लिख लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है, रियल में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फ्लोट और डबल, रियल एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। रियल एक्सप्रेशन में मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोई भी रियल कांस्टेंट ले लेंगे और उसके साथ वेरिएबल का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन, मैंने आपको डिफिनेशन भी बताई थी, ठीक है। जैसे कि मैं ले ले रहा हूँ एक फ्लोट वेरिएबल्स, मैं कुछ ले ले रहा हूँ जैसे कि ए बी सी और एक्स वाई जेड, सपोज दैट ये मैंने इतने सारे फ्लोट वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने राइट कर दिया
ए प्लस 5.0, तो यहाँ पर ए तो वेरिएबल है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और 5.0 क्या है बेटा, रियल कांस्टेंट। ये कैसे रियल कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर जीरो है, तो ये क्या है बेटा, रियल रियल नंबर है। जैसे मैंने लिख दिया बेटा 23.4 प्लस y प्लस z। सो वाई जेड आपको पता है ये वेरिएबल है, विच काइंड ऑफ वेरिएबल इट इज, एज यू नो वेरिएबल इट इज ए फ्लोट टाइप वेरिएबल। ये देखिए यहाँ पर फ्लोट टाइप वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, और उसके साथ फ्लोट कांस्टेंट वैल्यू का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा बेटा, आपका रियल एक्सप्रेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब रियल वैल्यूज का कॉम्बिनेशन, रियल कांस्टेंट भी है, रियल वेरिएबल्स भी है। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड। मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड एक्सप्रेशन। थर्ड एक्सप्रेशन है बेटा मिक्स्ड एक्सप्रेशन। मिक्स्ड एक्सप्रेशन में क्या होगा, इसमें इंटीजर वैल्यूज भी होंगी और रियल एक्सप्रेशन वाली वैल्यूज भी होंगी, मतलब रियल वैल्यूज भी होंगी, तो मिक्स्ड कहलाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया इंटीजर ए कॉमा एक्स सेमीकोलन फ्लोट बी कॉमा वाई। ठीक है, अब मैं ऐड कर रहा हूं ए प्लस बी, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ए प्लस बी मैंने अगर राइट किया तो ये क्या बेटा, इसको बोलेंगे मिक्स्ड एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि ए है इंटीजर टाइप और बी है फ्लोट टाइप, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, मिक्स्ड एक्सप्रेशन। क्लियर है। जैसे मैंने लिखा a प्लस 5.0, तो a क्या है बेटा, इंटीजर टाइप। ठीक, 5.0 क्या है, रियल नंबर है, फ्लोट नंबर है, तो ये क्या कहलाएगा, मिक्स्ड। मिक्स्ड मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट वैल्यूज, इंटीजर एंड रियल एक्सप्रेशंस। जैसे मैंने लिख दिया x प्लस वाई माइनस बी, सो विच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इट इज, इट इज अ मिक्स्ड एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए यहाँ पर देखिए ना, x की डेटा टाइप कैसा है बेटा, इंटीजर डेटा टाइप, y का कैसा है, फ्लोट टाइप। सो ये इंटीजर टाइप, ये फ्लोट टाइप, और b कैसा है, फिर से फ्लोट टाइप है, सो मिक्स्ड हो गया ना। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज प्लस रियल वैल्यूज, इसलिए इसको बोल देते हैं बेटा हम क्या, मिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, स्ट्रिंग में क्या होता है, चलिए देखते हैं स्ट्रिंग में किस तरीके से एक्सप्रेशन बन सकते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, नहीं पता तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्ट्रिंग में हम एडिशन ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन वी कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है, बट स्ट्रिंग को हम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, दैट इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन, कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रिंग को सर हम ऐड कर सकते हैं, ये ऐड नहीं कहलाता बेटा, ये ज्वाइन कहलाता है। क्योंकि हमने जैसे सपोज कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा, मैंने अपना नाम भी लिखा, जैसे कि शशांक। ठीक है, SHANK, शशांक लिखा, डबल कोट्स में, डबल कोट्स इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू, प्लस ये ऑपरेटर है। आप लोग कहते हैं कि सर ये प्लस ऑपरेटर है, ये ऐड ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर। देखिए इस ऑपरेटर को अगर हम स्ट्रिंग में यूज कर रहे हैं प्लस, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। ठीक है, और मैंने यहाँ लिख दिया गुप्ता। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है आफ्टर एसओपी के अंदर अगर हम राइट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो लिख के आएगी शशांक गुप्ता, SHANK विदाउट एनी स्पेस, गुप्ता। इसमें क्या हुआ, ये ज्वाइन हो गई, ये फर्स्ट स्ट्रिंग दूसरी स्ट्रिंग से क्या हो गया बेटा, ज्वाइन। इसको ज्वाइनिंग बोलेंगे, एडिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशंस होते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लेके आपको समझाया है। जैसे कि आपने लिखा ए, डबल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये अब करेक्टर नहीं है, ये स्ट्रिंग हो गई, प्लस बी। ठीक है, ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है, इसलिए क्या है, ये स्ट्रिंग है, आंसर आएगा ए बी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जल्दी से, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 डबल कोट्स के अंदर, ये एक स्ट्रिंग बन गई, प्लस मैंने लिखा यहाँ पे 4 5 6 डबल कोट्स के अंदर। अब ये क्या हो, ये दोनों ही स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, बीच में क्या है, प्लस ऑपरेटर, इट इज ए कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, नॉट ए एडिशन ऑपरेटर। सो 1 2 3 4 5 6, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ज्वाइन हो गई स्ट्रिंग। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग
एक्सप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन जल्दी से देखते हैं। लास्ट एक्सप्रेशन है बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, समटाइम्स हम इसे लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट में हमेशा बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन। लॉजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा। बुलियन एक्सप्रेशन ऑलवेज गिव्स द बुलियन values. It always return boolean value. boolean value में आपको पता ही है, ट्रू होती हैं या तो फॉल्स होती हैं। ठीक है, वन और जीरो नहीं, वन और जीरो को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स से, बट बुलियन वैल्यू ये ट्रू ही होती है। इसको ट्रू बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं। ओनली टू टाइप्स ऑफ वैल्यू इट कैन होल्ड, ट्रू और फॉल्स, नॉट वन और जीरो। ठीक है, नॉट वन और जीरो को हम रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट जो आपके आउटपुट में रिटर्न करेगा वैल्यू, आउटपुट टर्मिनल में, वो ट्रू या फिर फॉल्स ही रिटर्न करेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन लिखा, एक्स ए ग्रेटर देन बी। प्रीवियस वीडियो में हमने इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने रन कराए थे, बी लेस देन सी। सो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन हम लोग राइट करते हैं जावा में, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। क्यों बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि ये भी एक रिलेशनल ऑपरेटर, दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में ही देते हैं, या तो ये वैल्यू ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, इसमें भी या तो वैल्यू ये ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। इसका क्या फंक्शन है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, जिनको नहीं पता जाइए वीडियो देखिए। ठीक है, लॉजिकल एंड आपको अगर नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में जाइए मेरे, वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ पर मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है, इसका क्या रोल है। इसका मतलब है, अब ये अगर दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तो रिजल्टेंट ट्रू होगा, इन द रेस्ट केसेस में क्या होगा, ऑलवेज गिव द फॉल्स वैल्यू। तो ये क्या करेगा, या तो रिटर्न करेगा ट्रू या तो रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि अभी हमने ए और बी सी की कुछ वैल्यू अभी हमने दी नहीं है, तो हमने जनरल एक इस एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन कहलाते हैं बेटा, बुलियन एक्सप्रेशन कहलाते हैं। ठीक है, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे। ठीक है, ये भी क्या है बेटा, या तो आई की वैल्यू जे के बराबर होगी या नहीं होगी, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, बुलियन एक्सप्रेशन। आई लेस देन 10, सपोज आई हैव रिटन हियर, तो या तो आई की वैल्यू 10 होगी, 10 से कम होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो ट्रू, नहीं होगी तो फॉल्स। तो ये भी रिजल्ट किसमें देगा बेटा, या तो ट्रू या तो फॉल्स में। ये भी क्या देगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स में। मैंने लिखा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे, ये मैंने एक एक्सप्रेशन राइट किया, तो या तो ये वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। ये हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में जब लोग पढ़ेंगे वहां पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे एक्सप्रेशन डिस्कस किए। सबसे पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस में इंटीजर एक्सप्रेशन, रियल एक्सप्रेशन और मिक्स्ड एक्सप्रेशन देखे। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने सारे एक्सप्रेशंस में स्ट्रिंग एक्सप्रेशन देखा, बुलियन एक्सप्रेशन देखा। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको लास्ट में, लेकिन ये हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको जब हम लाइब्रेरी मेथड्स पढ़ाएंगे तब। लेकिन हम एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं आपको। जैसे कि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, लाइक टी इज इक्वल टू, इफ इट इज रिटन लाइक दिस, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जैसे ये लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर m की वैल्यू इंटीजर टाइप हो, यहाँ पर m2 की वैल्यू हो सकती है फ्लोट टाइप हो। ठीक है, मे बी ये इंटीजर टाइप हो, ये फ्लोट टाइप हो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन, ये एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन क्या किस टाइप का कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा मिक्स्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वैल्यू ले ली, एक और ई इक्वल टू समथिंग एम ए इंटू एच प्लस वी स्क्वायर बाई टू, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग जावा एक्सप्रेशन में राइट करते हैं। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट जो भी जावा एक्सप्रेशन है वो हम लोग राइट करते हैं, इक्विवेलेंट। ठीक है, वेट अ मिनट,
इक्विवेलेंट हम लोग जावा एक्सप्रेशन राइट करेंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। जैसे कि ये है क्वेश्चन, इसका इक्विवेलेंट जावा एक्सप्रेशन क्या होगा, मैं राइट करूंगा टू टी इक्वल टू टू इंटू एम वन इंटू एम टू, ठीक है, डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। ये इसका जावा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। इसका अगर हम बात करते हैं तो ई इक्वल टू एम ब्रैकेट एम इंटू ब्रैकेट में ए इंटू एच, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर को वी इंटू वी डिवाइड बाई टू, या फिर वी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं मैथ डॉट पाव। पाव भाजी वाला पाव नहीं है ये बेटा, ये पाव फंक्शन है जो मैथ क्लास का फंक्शन होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम जावा एक्सप्रेशन राइट करते हैं, ठीक है। ये एक सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू है जो कि एक्सप्रेशन से रिलेटेड था, इसलिए मैंने बता दिया। ओके ओके क्लास। सो आज के सेशन में हम लोगों ने पूरा एक्सप्रेशन टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और मैं आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।